students, today we are here with our next very important lecture of cell cycle and cell division, and in this video we will discuss about the mitosis cell division. Okay, in our previous lecture we had discussed the amitosis cell division and now the mitosis cell division. Clear? First of all, we have to know about what is the meaning of mitosis. Yeah, this is the mitosis cell division. Here the meaning of mitosis. The word mitosis is made up of two words, that is mitose. Mitose means thread and osis means state. It means this is the division in which the formation of spindle fibers takes place. In the amitosis cell division, there is no formation of spindle fibers. That's why it is called as amitosis. And in case of mitosis cell division, spindle fiber formation takes place. So it is the important one, that is formation of spindle fibers. Why these spindle fibers have formed? Because these are useful in the tying of chromosomes at the time of karyokinesis. Here, so here the formation of spindle fibers takes place. First of all, the mitosis cell division is discovered by Strasburger. Clear? Strasburger discovered the mitosis cell division in plant cells. And in case of animals, it is discovered by Fleming. Fleming discovered the mitosis cell division in animals. And also the term mitosis is given by Fleming. So the term mitosis is also given by Fleming. Clear? So this is about the discovery of mitosis cell division. In case of mitosis cell division, two daughter cells are formed and the number of chromosomes in the daughter cells is always equal to the number of chromosomes in the parent cell. That's why it is also called as equational division. Clear? So it is called as equational division because number of chromosomes in daughter cells are always equal to the number of chromosomes in the parent cell. Clear? तो यहाँ पर जो माइटोसिस सेल डिवीजन है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट में हैं, हमने जब इंटरफेज स्टेज देखी थी तो वहां पर हमने देखा था G1 स्टेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज प्रिपेयर करती है सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. इन एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन हैज टू बी टेक्स प्लेस. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस से हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह के हो जाते हैं, सी वैल्यू हो जाती है उनकी 4C. ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वहां पर जो डीएनए कंटेंट है इट गेट्स डबल्ड. ठीक है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है और क्रोमोसोम्स में आपके पास सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो उस टाइम पर जब ये आपस में सेपरेट होते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इसलिए डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल इज ऑल्सो डिप्लॉयड एंड द डॉटर सेल्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड. दिस टाइप ऑफ डिविजन कैन टेक्स प्लेस in somatic cells. Now it is always takes place in somatic cells, but in germinal cells also mitosis division is going to takes place. ठीक है, जर्माइनल सेल्स जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में डिस्कस करते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, दिस मल्टीप्लिकेशन फेज इज ऑल्सो ऑफ माइटोसिस सेल डिविजन. ठीक है, तो वहां पर जर्माइनल सेल्स में भी माइटोसिस सेल डिविजन होते हैं. तो सोमैटिक सेल्स or germinal cells, these may have mitosis cell division. The number of chromosome in the cell may be haploid or diploid. ठीक है, हैप्लॉइड होगा
तो भी डॉटर सेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, डिप्लॉइड होगा तो डॉटर सेल्स में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम सेल में हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, दोनों टाइप की सेल्स में माइटोसिस सेल डिवीजन हमारे पास हो सकता है। नाउ कम टू द प्रोसेस or the different phases of mitosis cell division. We know that the first phase is division of nucleus, and the division of nucleus is called as karyokinesis. Karyokinesis means division of nucleus. This division of nucleus takes place in the 4 sub stages, that is prophase, second one is metaphase, third one is anaphase, and fourth one is telophase. After telophase, cytokinesis will take place, and cytokinesis means cytoplasmic division. It is cytoplasmic division. Clear? So these are the steps of mitosis cell division. We will discuss these steps one by one. First of all, we have to discuss the first division, that is karyokinesis, and the first phase, that is prophase. The cell is diploid. Clear? The cell is having diploid number of chromosomes. सेल में इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है, इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है, इट मींस डीएनए हैज बीन रेप्लिकेटेड, डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और डिवीजन के लिए जितनी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट थी, ऑल प्रोटीन्स हैज टू बी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द G2 फेज. ठीक है, तो यहां पर सेल जो है इट इज रेडी फॉर द M फेज. इंटरफेज यहां पर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो हम देखते हैं इंटरफेज में सेल में क्या क्या हो चुका है. दिस इज द सेल इन इंटरफेज स्टेज. ठीक है, तो यहां पर दिस इज इंटरफेज सेल जिसमें इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है. द सेल इज डिप्लॉइड एंड दिस इज 4C. ठीक है, हमारे पास सेल डिप्लॉइड है लेकिन डीएनए कंटेंट क्या है, डबल है. क्लियर? सो दिस इज 4C. द C वैल्यू इज 4. नाउ दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. यहाँ पे हम बाकी सेल ऑर्गेनल्स को ड्रॉ नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस की हमें जरूरत है तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सिर्फ न्यूक्लियस को. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, और अंदर है हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल. सो वी आर ड्रॉइंग द 4 क्रोमेटिन फाइबर्स. क्लियर है? और यहां पर आपके पास है सेंट्रियोल. दीज आर द 2 यूनिट्स ऑफ सेंट्रियोल. This is the centriole. Here, this is the cell during interphase. Now, after completion of interphase, interphase यहाँ पे complete हो चुका है. Now, this cell is ready to divide. It means the cell is going to enter in the M phase, and the first phase is prophase. Now, the prophase is divided into early prophase and late prophase. First of all, we have to discuss about early prophase. This is the cell in the stage that is early prophase. ठीक है, अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस हमें इस सेल में देखने को मिलेंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हियर द क्रोमोसोम्स आर स्टार्ट्स कंडेंसिंग. ठीक है, यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास अर्ली प्रोफेज में, और लेट प्रोफेज तक आते आते क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं. तो वहां पर पेयरिंग भी हमारे पास हो जाती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रोमोसोम्स की कंडेंसिंग होती है. सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. ठीक है,
nuclear membrane, endoplasmic membrane, Golgi membrane, these all membranes are going to be disappeared. तो यहाँ पर इनका disappearing start हो जाता है and the centriole moves towards the opposite poles. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक centriole है, ठीक है, this is the one centriole and the second centriole is moving towards the opposite pole. तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट्रियोल. तो यहाँ पर सेंट्रियोल जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मूव कर चुका है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ये थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर देता है. इट गेट्स कंप्लीटेड इन द लेट प्रोफेज. द क्रोमोसोम्स आर कंडेंस. ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस हो जाएंगे और हमें क्लियरली यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में है और क्लियरली यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस हो जाते हैं और इस तरह से हमें क्रोमोसोम्स, इस तरह से आपको ये क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे. सो दीज आर द कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स. क्लियर? नाउ व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस अर्ली प्रोसेस? हियर ER membrane, Golgi membrane and nuclear membrane starts disappearing. Clear? So these starts disappearing. This is the first important change. And the second change is chromatin fibers. These chromatin fibers gets condensed. So here chromatin fibers condensed and centriole moves starts towards the opposite poles. ठीक है, सेंट्रियोल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा opposite poles पे. तो थर्ड चेंज इज centriole moves towards opposite poles. क्लियर? अपोजिट पोल्स पे सेंट्रियोल आना शुरू हो जाते हैं. स्पिंडल फाइबर वर्क फॉर्मेशन लेट प्रोफेज में हमारे पास स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो कहाँ अरेंज हो गए हैं? अपोजिट पोल्स पे आ गए हैं. नेक्स्ट फेज इज लेट प्रोफेज. ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज आने वाली है दैट इज द लेट प्रोफेज. ना, आई एम ड्रॉइंग हियर द लेट प्रोफेज. लेट प्रोफेज स्टेज में आपके पास क्या होने वाला है? दिस इज द लेट प्रोफेज. क्लियर? दिस इज द डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई है. दिस इज द सेंट्रियोल, वन सेंट्रियोल एंड द अदर वन इज द अपोजिट पोल. Centriole starts forming spindle fibers. There are two types of fibers are formed by the centriole. Some are the smaller fibers. These are the smaller fibers, and these smaller fibers are called as astral rays. These are the astral rays. Clear? I am erasing the early prophase stage. The small fibers are called as astral rays and the long fibers are called as spindle fibers. These are the long fibers and these long fibers are called as spindle fibers. These are the spindle fibers. This is the centriole. The centriole and astral rays together forms asters. Two asters are formed. One aster at this pole and the second aster is at the another pole. So this is called as amphiastrus. In animal cells, this stage is called as amphiastrus because two asters are formed from centriole and astral rays. क्लियर? तो टू एस्टर्स का फॉर्मेशन यहां पर होता है. दैट्स व्हाई इट इज द एम्फीएस्ट्रस स्टेज. इसे हम एम्फीएस्ट्रस स्टेज कहेंगे. नाउ द स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स टाइंग द क्रोमोसोम्स. ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हमारे पास है ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स पे आके अटैच हो जाते हैं.
दिस इज द वन क्रोमोसोम, ठीक है, एंड द क्रोमोसोम इज हैविंग 2 आर्म्स. दिस इज द 2 आर्म ऑफ द क्रोमोसोम. वन मोर क्रोमोसोम इज देयर. दिस इज द सेकेंड क्रोमोसोम having 2 arms. This is the third chromosome and this is the fourth chromosome. ठीक है, यहां पर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो चुका है. ठीक है, छोटे फाइबर्स जो है दीज आर द एस्ट्रल रेज एंड जो लॉन्ग फाइबर्स है दे आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स. सो ड्यूरिंग दिस फेज व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. So spindle fibers form, and second one is the spindle fibers gets attached with the chromosomes. ठीक है, तो spindle fibers जो है these spindle fibers gets attached with the chromosomes. ठीक है, यहां पर अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, attached with the chromosomes. ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्रोमोसोम है यहां पे. दिस इज द वन आर्म एंड दिस इज द सेकेंड आर्म. दिस इज अगेन वन आर्म एंड दिस इज द सेकेंड आर्म. दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. और इस काइनेटोकोर से यहां से हमारे पास अटैच है स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, तो इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट यहाँ पे आपके पास हो जाता है. और इसके साथ हमारे पास कौन कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 आर्म्स है. जब यहाँ पर डिटैचमेंट होगा, जब क्रोमोसोम्स आपस में दोनों आर्म्स डिटैच होंगी, तो यहां से डिटैचमेंट इस सेंट्रोमियर वाले पार्ट से यहां से आपस में डिटैच होंगी. हाफ ऑफ द पार्ट कहाँ जाएगा? एक सेल के अंदर, और दूसरा पार्ट कहाँ जाएगा? डॉटर सेल में. ठीक है, यहाँ पे अपने पास इनका डीएनए जो कि रेप्लिकेटेड है. सो रेप्लिकेटेड डीएनए इज देयर. दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ सी वैल्यू ना, जब यहां से डिटैच हो जाएगा तो इसमें हमारे पास क्या है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4c. सी वैल्यू इज 4c. जब यहां से डिटैच होगा तो क्रोमोसोम तो 2n ही रहेगा, लेकिन सी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2c. ठीक है, तो ये हम देखेंगे आने वाले बाकी फेजेस में. इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आने वाली है दैट इज मेटाफेज, एंड अबाउट मेटाफेज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो इस वीडियो को आप कंटिन्यूअसली अच्छे से ध्यान से देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियोस को देखना मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच.